Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the next two chapters in the class 11th Fundamentals of Physical Geography. The chapters are, first is chapter is dealing with atmosphere, that is chapter number 8, Composition and Structure of Atmosphere, and the second chapter is chapter number 9, Solar Radiation, Heat Balance and Temperature. So these are the two important chapters that we are going to cover in today's class. आज की क्लास में हम 11th की NCERT जो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी उसके चैप्टर नंबर 8 और 9 को कवर करने जा रहे हैं. ठीक है. सो द क्लास PDFs विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. क्लास नोट्स के साथ साथ आप देख सकते हो क्लास PDF जो होगा वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, सो दैट यू विल हैव योर नोट्स एंड रिसोर्सेज विद यू व्हेन यू रिवाइज. ठीक है, ताकि आपके पास आपके नोट्स रिसोर्सेज रहें जब आप रिवाइज करें. Now before we start the class, this is a small announcement from our side. हमारी तरफ से एक छोटी सी announcement है that Unacademy Rise 2.0 test series, free test series have been launched by Unacademy, which will have daily practice test on GS paper 1 for UPSC CSE prelims examination containing Indian polity, economy, geography, history, science and technology, environment and ecology and art and culture. And these tests have been curated by a top Unacademy educator who is Mr. Ankit Avasti, and ranking for the test will be provided if you take up the test live. अगर आप लाइव टेस्ट लेते हो ना तो आपको आपकी रैंक्स भी मिलेगी, एंड यू कैन गिव द रिकॉर्डेड टेस्ट एज वेल, बट इन द रिकॉर्डेड टेस्ट रैंक विल नॉट बी गिवन. ओके, इट विल बी गिवन इन द लाइव टेस्ट. And each test paper would consist of 20 MCQs for 40 marks, and they will be available in both Hindi and English language. So hurry up, enroll in these free daily practice test for prelims. ठीक है, जल्दी से enroll कर लीजिए. 30 मिनट्स का ये टेस्ट हुआ करेगा, and the timing of the test will be 8:30 AM daily in the morning. सुबह 8:30 बजे ये टेस्ट हुआ करेंगे. Now how to enroll in these tests, कैसे enroll करना है? You have to download the Unacademy learning app, register or sign in on the app, select the goal as UPSC CSE, click on the link which is given in the description box, then click on enroll button. And then there will be a prompt button जिसमें आपको ये कोड डालना है अर्पिता 10 टू अनलॉक द फ्री टेस्ट. इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा अर्पिता 10. ठीक है, यू विल हैव टू यूज़ दिस कोड. सो द लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फटाफट से इसको आप यूज़ कीजिए और फ्री टेस्ट डेली देना शुरू कर दीजिए, बिकॉज if you are preparing for 2021, then start giving these mock test from today itself, and Unacademy is providing you these free mock test. Okay, so here you have a chance to score better, to improve your scores in your actual exam. So use this code, unlock the plus experience free of cost, and give these tests. So let's start with the chapters now. So first we are going to start with composition of atmosphere. This is chapter number 9. We are going to start with chapter number 8. हम आज शुरू करने वाले हैं chapter 8 से, and chapter 8 is composition of atmosphere. Then we will study chapter 9. These two chapters are very important for prelims. ये दोनों ही chapters आपके prelims के लिए बहुत important हैं. ठीक है, so make sure you are simultaneously making notes in the class and focusing also. आज आपके focus level थोड़ा strong रहना चाहिए. ठीक है. So composition of atmosphere. Before studying that, we should know what exactly is an atmosphere. सबसे पहले ये तो जान लें कि भैया atmosphere होता क्या है. First let us understand that. So when we talk about atmosphere, what is atmosphere? We know that Earth is a unique planet because it has presence of life on it. ठीक है, Earth के ऊपर life की presence होती है, and that life giving air that surrounds the earth is atmosphere. It's a part of atmosphere. So the air is one of the necessary, you can say, conditions for the survival of species on earth. Okay, so what is this atmosphere? Write it down. Atmosphere is the air, the life giving air that is surrounding the earth. The air surrounding the earth is called atmosphere. उसी को हम atmosphere बोलते हैं. And this air is a mixture of several gases. इस एयर में काफ़ी सारी गैसेस रहती हैं. देयर आर वाटर वेपर्स ऑल्सो, डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो, गैसेज ऑल्सो, ऑल काइंड्स ऑफ गैसेज, गुड गैसेज एंड बैड गैसेज. हर तरीके की गैस होती है इस एयर में, एंड इट सराउंड्स द अर्थ. ओके, सो यू कैन से द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज एटमॉस्फेयर, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज. ठीक है, एयर में लाइफ गिविंग गैसेज भी पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल oxygen for humans,
एंड एनिमल्स के लिए, और एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन हो गया, एंड प्लांट्स के लिए कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, ठीक है. सो दीज आर द लाइफ गिविंग गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड दिस एयर इट एनवेलप्स द अर्थ, ये पूरे अर्थ को हर तरफ से एनवेलप कर लेती है, सराउंड कर लेती है. इट एक्ट्स एज अ ग्रेविटी फील्ड फॉर द अर्थ एज वेल, ठीक है, एंड इट इज हेल्ड बाय द ग्रेविटी. अब देखो ये एयर है, ये एक फर्म पोजीशन में रहती है. दैट फर्म पोजीशन इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ओके. एंड दिस एयर ऑल्सो हेल्प्स, राइट इट डाउन, इट ऑल्सो हेल्प्स in stopping the UV rays. What is UV rays? UV rays are the ultraviolet rays which are emitting from the sun, and they are harmful for humans and animals because उससे क्या होता है, स्किन कैंसर तक हो सकता है, ठीक है. सो इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द UV rays which are harmful to the life, ठीक है, and it maintains suitable temperature throughout, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एज वेल, ओके. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सबको, एटमॉस्फेयर समझ आ गया. अब समझते हैं एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. नाउ बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू अ फ्लो चार्ट. हमें एटमॉस्फेयर को फ्लो चार्ट के थ्रू समझना है ताकि आपके पास नोट्स बने रहें, सो दैट during the time of prelims you can revise through these notes only, okay. So write it down that atmosphere, it is composed of, we have gases over here, it is composed of gases, then we have water vapor, it is composed of water vapor also, and it is also composed of dust particles, ठीक है, gases, water vapors and dust particles. These are the three basic elements which you find in the atmosphere. ये basic elements आपको atmosphere में देखने को मिलते हैं. When we talk about ozone, so over here when we talk about gases we have ozone over here. Now what is the role of ozone? Ozone का role क्या होता है? It absorbs the UV rays. ये UV rays को absorb करती है. Then over here we have CO2 also. फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है. What is the role of carbon dioxide? It is responsible for the greenhouse effect. जो greenhouse gases आप देखते हो उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है. So it is responsible for greenhouse effect. ठीक है. Now we also know about carbon dioxide that it is transparent. Write it down. It is transparent to the incoming solar radiation. It is transparent to the incoming solar radiation, and it is opaque to the outgoing. It is opaque to the outgoing terrestrial radiation. We will study about terrestrial radiation also in today's class. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स को, कह सकते हो आप, आगे बढ़ाती है, इम्प्रूव आप कह सकते हो इंक्रीज करती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इन ऑन दिस प्लैनेट, एंड ऑल्सो इट इज ट्रांसपेरेंट व्हेन दी सोलर रेज आर कमिंग इन. ये मान लो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज द एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज transparent to the incoming solar radiation, so it can capture it well, and it is opaque to the terrestrial radiation. Terrestrial radiation means the radiation which is reflected back by the earth, ठीक है. तो क्या होता है ओपेक का मतलब क्या होता है, ये ब्लॉक कर लेती है. ओपेक मीन्स इट ब्लॉक्स द रेडिएशन. जो बाहर जा रही होती है ना रेडिएशन को, कार्बन रेडिएशन या आप कह सकते हो सोलर एनर्जी अर्थ के सरफेस से, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ब्लॉक कर लेती है. दैट इज वाई इट इज ओपेक टू इट, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन इसके थ्रू पास हो सकता है, बट आउटगोइंग रेडिएशन इसके थ्रू पास नहीं हो सकता, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको ब्लॉक कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गई सभी को बात. लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. दिस इफेक्ट्स द क्लाइमेट चेंज एज वेल विच यू रीड अबाउट इन द न्यूज़पेपर, ठीक है. चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ गैसेस, हम जब बात करते हैं एटमॉस्फेयर में गैसेस की, द प्रपोर्शन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इट चेंजेस इन हायर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. नाउ देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो दैट वी विल स्टडी राइट नाउ. एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं. टोटल देयर आर 5 लेयर्स, ठीक है. लोग नॉर्मली 4 लेयर्स समझते हैं, बट वैसे 5 लेयर्स होते हैं, बिकॉज सम पीपल दे डू नॉट कंसिडर एक्सोस्फेयर एज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, बट इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेयर्स, प्रपोर्शन ऑफ गैसेस, write it down that the proportion of gases it changes
it changes in the higher layer of एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जितनी भी ऊपर जाती रहती हैं लेयर, जैसे जैसे ऊपर इंक्रीज करती रहती हैं, गैसेस का प्रोपोर्शन या कॉम्पोजिशन भी बदलता रहता है, इसकी बनावट भी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, इट इज नेग्लिजिबल, राइट इट डाउन, इट इज नेग्लिजिबल, it is of negligible quantity at a height of 120 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेग्लिजिबल क्वांटिटी मीन्स वेरी मिनिमल, काफी कम होती है। सो एज यू क्लाइंब अप अ माउंटेन यू सी दैट यू नो एक्सपीरियंस अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जैसे जैसे आप माउंटेन पे ऊपर चढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, होता है ना? वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी नेग्लिजिबल, बिकॉज इट चेंजेस इन दी हायर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ऊपर जाते जाते गैसेस का पूरा कॉम्पोजिशन ही बदल जाता है। दैट इज वाई इट इज सेड ऑक्सीजन इज एट वेरी मिनिमल क्वांटिटी एट अ हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर की बात करें, इट इज फाउंड, राइट इट डाउन, इट इज फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर्स फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि ये ऑक्सीजन से पहले ही डिप्लीट होने लगते हैं। ठीक है, इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग way before oxygen gets depleted. Okay, so carbon dioxide and water vapor found only up to 90 kilometer from surface of earth, and oxygen it is very negligible, you know, at the height of 120 kilometer from the surface of earth. So these digits, these facts you have to remember for prelims. आपको ये facts prelims के लिए याद रखने हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर वेपर ओवर हियर, जब हम यहाँ पर वाटर वेपर की बात करते हैं, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट वाटर वेपर इज वेरिएबल गैस। ये वेरिएबल गैस होती है, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, इन दी एटमॉस्फेयर एंड इट डिपेंड्स ऑन दी क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है वाटर वेपर। इन दी कॉन्टिनेंटल रीजन वेयर वी हैव लैंड मासेस, फॉर एग्जांपल लैंड रीजन और माउंटेन रीजन, वाटर वेपर्स क्वांटिटी इज डिफरेंट, बट इन दी ओशनिक रीजन्स वाटर वेपर क्वांटिटी इज वेरी हाई। ओशनिक रीजन में अगर आप देखोगे समुद्र के आसपास वाटर वेपर की क्वांटिटी काफी हाई होती है, और अगर आप जंगलों में या ऐसे एरियाज में देखोगे जहां पर लैंड है, प्लेन्स हैं, वहां पर वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, एंड वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज, इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ऑल्टीट्यूड के साथ साथ वाटर वेपर भी डिक्रीज करता है, एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेज, राइट इट डाउन, these little information are important for prelims. Okay, it also decreases from the equator towards the pole, from the equator towards the pole. Why? Because height is increasing. ठीक है, पोलर इक्वेटर से, ये दिस इज द इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से अगर आप ये पोलर रीजन पर जाओगे तो हाइट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर वाटर वेपर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? सो वाटर वेपर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, ये जो वाटर वेपर है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन एयर बोथ। ठीक है, एयर में स्टेबिलिटी हो इंस्टेबिलिटी हो, वाटर वेपर का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रहता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स की। सी वी हैव स्टडीड गैसेस, वाटर वेपर, नाउ कमिंग टू डस्ट पार्टिकल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स, जब हम डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। हियर यू विल हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। सो हियर डस्ट पार्टिकल्स दे आर कॉन्सेंट्रेटेड वेयर, कौन से लेवल में, कौन से लेयर में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं? दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादातर आपको डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स आर यू नो नियर दी सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सरफेस एरिया है वहीं आसपास आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। सो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, और यू कैन से दे आर मोस्टली फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिलिम्स इज दैट दे एक्ट्स एज, राइट इट डाउन, hygroscopic nuclei. They acts as the hygroscopic nuclei. Now what is this? ये है क्या, ये समझ लेते हैं। Now देखो, ये hygroscopic nuclei जो होते हैं ये छोटे छोटे particles होते हैं। These are small little particles in the shape of a nuclei, small little elements which are formed around the clouds, जो clouds के आसपास पाए जाते हैं, which are formed around the clouds. ठीक है, एंड दे आर फाउंड मोर, यू कैन से मोर प्रोमिनेंटली इन द ट्रोपोस्फेयर।
जो आपकी अर्थ की सबसे लोअर लेवल लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, वहां पाए जाते हैं नियर द क्लाउड, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग द क्लाउड हैवी। ठीक है, इनका पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्लाउड्स को हैवी बनाने का। सो इन द क्लाउड्स यू विल फाइंड डस्ट पार्टिकल्स एज वेल एज वाटर वेपर। क्लाउड्स में आप देखोगे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, वी हैव स्टडीड स्मॉल लिटिल एलिमेंट्स अबाउट एटमॉस्फेयर। नाउ वी हैव टू स्टडी द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो प्लीज मेक दिस डायग्राम, जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए ताकि हम एक एक लेयर को अच्छे से समझ पाएं। नाउ दिस इज अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, अब यहां पर जो पहली लेवल ऑफ लेयर आएगा, ठीक है, द फर्स्ट लेवल ऑफ लेयर ओवर हियर, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप। द फर्स्ट लेवल ऑफ लेयर ओवर हियर, इट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर। इट इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ लेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। नाउ ट्रोपोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज द लोअर मोस्ट लेयर। इसको हम लोअर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर। ठीक है, एंड इट हैज वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ थिकनेस एट द इक्वेटर। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एट द इक्वेटर। ठीक है, द थिकनेस इज वेरी ग्रेट एट द इक्वेटर। नाउ एट द ट्रोपोस्फेयर योर रेन एक्टिविटी, ये जितनी भी क्लाउड की एक्टिविटीज होती है ना, बारिश होती है, थंडर स्टॉर्म, एवरीथिंग हैपन्स ओवर हियर। ठीक है, जो बारिश है वो यही होती है, ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। देन दिस इज द ट्रोपोस्फेयर, ये तो चलो आपका हो गया ट्रोपोस्फेयर में एक तरीके से शील्ड बनाने वाले हैं। दिस इज द काइंड ऑफ शील्ड और दिस इज द काइंड ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, नाउ ट्रोपोस्फेयर के बाद आपकी नेक्स्ट लेयर आती है, योर नेक्स्ट लेयर इज नोन एज स्ट्रैटोस्फेयर। यहां पर आपका आएगा दिस इज द स्ट्रैटोस्फेयर। ठीक है, एंड स्ट्रैटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर आर डिवाइडेड बाय अ थिन लेयर। एक थिन लेयर है जिससे स्ट्रैटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर डिवाइडेड है। दिस थिन लेयर इज नोन एज ट्रोपोपोज। ठीक है, इस थिन लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। राइट इट डाउन, दिस इज नोन एज ट्रोपोपोज। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैटोस्फेयर है ना, यहीं पर ही आपको ओजोन लेयर भी दिखेगी। ठीक है, ओवर हियर यू विल फाइंड द ओजोन लेयर which protects you from the UV rays, so that ozone layer is found in the stratosphere. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर इज नोन एज द मीजोस्फेयर। ये हो गया आपका नेक्स्ट लेयर, द मीजोस्फेयर, एंड इट इज सेड दैट ऑल द एयरप्लेन्स, जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं वो आपके स्ट्रैटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। ऑल द एरोप्लेन्स एंड फ्लाइट्स दे टेक्स प्लेस इन द स्ट्रैटोस्फेयर ओनली। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ वी हैव द मीजोस्फेयर। Now stratosphere and mesosphere are again divided by a thin line. एक thin line है जो कि stratosphere और mesosphere को divide करती है। This is the thin line. Now this thin line is known as, इस line को हम क्या बोलते हैं, this line is known as stratopause. ठीक है, this is stratopause. ठीक है, इसको हम बोलेंगे stratopause. Now coming after the mesosphere we have another layer of you can say earth atmosphere. एक और layer होता है हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर का, and that is known as thermosphere. उस लेयर को हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब हम थर्मोस्फेयर की बात करते हैं, here only we will find another layer of atmosphere within the thermosphere, that is known as ionosphere. इसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। यहाँ पर आप देखोगे सारे आयंस यहीं पाए जाते हैं। ऑल द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस आर फाउंड इन द थर्मोस्फेयर ओनली। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स विच आर नोन एज आयंस आर फाउंड हियर, एंड हियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। यहाँ पर क्या होता है, राइट इट डाउन, द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। ठीक है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। देन आफ्टर थर्मोस्फेयर वी हैव अनदर लेयर विच इज नोन एज एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद हमारे पास एक और लेयर आता है जिसको हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं, एंड अगेन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड। ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय थर्मोपॉज। अब यहाँ पर थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोपॉज बोलते हैं। दिस डिवाइडिंग लाइन इज मीजोपॉज एंड दिस डिवाइडिंग लाइन इज थर्मोपॉज। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, अभी समझ आ गया कि कहां पर ओजोन लेयर होता है, कहां नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं कि डिस्टेंस किसका कितना होता है। सो ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की, इसका यहाँ पर जो डिस्टेंस देखोगे आप, दिस डिस्टेंस इट इज 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से आप स्ट्रेटोस्फेयर का पूरा डिस्टेंस मीजोस्फेयर तक देखोगे, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाता है 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से डिस्टेंस थर्मोस्फेयर तक, दैट इज 80 किलोमीटर, एंड टिल एक्सोस्फेयर वी हैव 400 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया, बट रिमेंबरिंग द डिस्टेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये डिस्टेंस आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए याद नहीं रखना, ठीक है। आपको डिफरेंट लेयर्स याद रखने हैं, एंड द फंक्शंस ऑफ द लेयर्स यू हैव टू रिमेंबर, एंड द डिवाइडिंग लाइंस यू हैव टू रिमेंबर। आपको डिवाइडिंग लाइंस याद रखने हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम सभी ने बना लिया तो मुझे प्लीज बता दीजिए। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रोपोस्फेयर, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर, वी हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। अब इसकी जो हाइट होती है टोटल, हमने देखा कि अगर हम बात करें इक्वेटर पे, ठीक है, वी टॉक अबाउट हाइट ऑन फ्रॉम द इक्वेटर, इट इज 18 किलोमीटर। इक्वेटर से इसकी हाइट 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। एंड फ्रॉम दी पोलर रीजन्स इफ वी लुक एट दी हाइट, देन इट इज 8 किलोमीटर। तो इक्वेटर से हाइट 18 किलोमीटर होगी ट्रोपोस्फियर की, और पोलर रीजन से हाइट जो होगी वो 8 किलोमीटर होगी, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। अब हम बात करते हैं थिकनेस की। तो आई हैव टोल्ड यू दैट एट द इक्वेटर इट इज मोर थिक, द लेयर इज वेरी थिक, बट एट द पोलर रीजन्स द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर इज नॉट वेरी थिक, ठीक है। एंड ट्रोपोस्फियर कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ पर आपको सारे वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, बिकॉज ऑल द रेनफॉल, ऑल द रेनिंग एक्टिविटीज दे टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर ओनली। ये सारी एक्टिविटीज आपके ट्रोपोस्फियर में होती है। देन व्हेन वी स्टडी अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर, हमें पता है इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर है, एंड हियर टेम्परेचर इज सेम। ट्रोपोस्फियर में जैसा टेम्परेचर होता है वैसा ही थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फियर में भी होता है, ठीक है। बट आफ्टर स्ट्रेटोस्फियर, राइट इट डाउन, आफ्टर द स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आई टोल्ड यू टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, सो आफ्टर स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है। The air it flows horizontally in stratosphere. In troposphere air blows horizontally also, vertically also. Troposphere में तो air movement आप horizontal भी देखोगे और vertical भी देखोगे, but in stratosphere air moves only horizontally. That is why it is the best layer which is used for flying the planes. ओके इसलिए इसको बेस्ट लेयर माना जाता है कि यहाँ पर आप अपने फ्लाइट्स वगैरह टेक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। तो ये स्पेशल फीचर है आपके लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का कि स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, बिकॉज यहाँ पर कोई क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस नहीं है। हियर देयर इज नो क्लाइमेटिक फैक्टर विच कैन इम्पैक्ट द टेम्परेचर और द हाइट, दैट इज वाई, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक। चलो अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we are going to start with the next important point. अब next important chapter से start करते हैं। ये थी basic information. This was the basic information about the atmosphere. Layers के बारे में पढ़ लिया, basic information पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं, let's move forward. Now over here, यहाँ जब बात करते हैं सोलर रेडिएशन की, we are going to start with the chapter 9, that is solar radiation. ठीक है। So when we talk about solar radiation, over here you should know that the atmosphere does not allow important essential life gases like oxygen to go out into the space. आपका जो एटमॉस्फेयर है बहुत क्लेवर है। Our atmosphere it has mind of its own, अपना खुद का दिमाग है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग गैसेज होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वो गैसेज बाहर नहीं जाती। ऑल दी अदर गैसेज दे आर रेडिएटेड बैक, बट एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन। सोच लो, इमेजिन करो अगर ऑक्सीजन एमिट होने लगा बाहर तो क्या होगा, राइट। इफ ऑक्सीजन इज एमिटेड देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अर्थ पे, ठीक है। सो दैट इज वाई प्लीज राइट इट डाउन। एक डायग्राम बना लेते हैं, बिकॉज थ्रू डायग्राम ओनली वी शुड स्टडी। हमें डायग्राम के थ्रू ही पढ़ना चाहिए तो ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक डायग्राम बना सकते हो। दिस इज द डायग्राम। नाउ दिस इज अर्थ, ये तो हो गया आपका अर्थ, एंड ओवर हियर वी हैव नाइट्रोजन ऑल्सो, ऑक्सीजन ऑल्सो, CO2 ऑल्सो, एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर। ये आपका हो गया यहाँ पर एटमॉस्फेयर। एंड एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस बिकॉज ऑफ विच फीचर, जल्दी से बताओ।
एटमॉस्फेयर जो है कौन से फीचर की वजह से अपनी प्लेस पे रहता है, अर्थ को सराउंड करके रखता है? What is the feature? Yes, that is gravity. So atmosphere is held in place because of gravity. Okay. So over here, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है sun. ठीक है. Over here we have the sun. ये हो गया आपका sun. ठीक है. And we see that sun is emitting solar energy. सन जो है सोलर एनर्जी इमिट कर रहा है. सो यूवी रेज आर ऑल्सो कमिंग इन. यूवी रेज भी आ रही हैं. दिस इज दी सन एंड दिस इज दी अर्थ. दिस इज दी एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखोगे दैट दिस एटमॉस्फेयर, राइट इट डाउन, इट डज नॉट अलाउ द इम्पॉर्टेंट लाइफ गिविंग गैसेस or you can say essential gases including oxygen to not go out in the space. ठीक है. तो बाहर जाने नहीं देता स्पेस से. ठीक है. Also another important point about atmosphere is that it allow, ठीक है, it does not allow, यहाँ पर आप लिख सकते हो it does not allow the harmful existence of UV rays. ठीक है. अब जो यूवी रेज आती हैं वो फिल्टर होती हैं एटमॉस्फेयर में. दीज यूवी रेज डायरेक्टली दे कैन नॉट कम एंटर इनटू आवर प्लैनेट. डायरेक्टली हमारे प्लैनेट में नहीं आ सकती हैं. दे आर इवन फिल्टर्ड बाय द एटमॉस्फेयर इन दी ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में आप देखोगे स्ट्रेटोस्फेयर में दैट द यूवी रेज आर फिल्टर्ड. अगर यूवी रेज फिल्टर नहीं होती तो ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज यूवी रेज आर हार्मफुल फॉर द स्किन. ठीक है. इसलिए बोलते हैं बाहर जाओ तो SPF क्रीम लगा के जाना चाहिए. वाई? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द यूवी रेज. एंड नाउ द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस. हमारी जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रही है उस वजह से आपका जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच नाउ यूवी रेज आर एंटरिंग इनटू आवर प्लैनेट. ठीक है. वेरी इजीली. सो दैट इज वाई मेंटेनिंग द ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट. इसलिए कहा जाता है कि ओजोन लेयर को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना जरूरी है. सो एटमॉस्फेयर डज नॉट अलाउ हार्मफुल एग्जिस्टेंस ऑफ यूवी रेज ऑल्सो. वाई? बिकॉज इट फिल्टर्स देम. क्यों? क्योंकि ये उनको फिल्टर कर देता है. ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो दैट एटमॉस्फेयर, इट हैज, राइट इट डाउन, द सेम वेट, इट हैज द सेम वेट एंड इट एक्सर्ट्स, इसका वेट चेंज नहीं होता, एंड इट एक्सर्ट्स the same pressure on earth, and this pressure is known as atmospheric pressure. इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. दिस इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ. एटमॉस्फेयर का भी अपना वेट होता है. इट इज हेल्ड बाय ग्रेविटी. इट इज हैविंग इट्स ओन वेट, राइट. सो इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन अर्थ विच इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. But it is said that not every place on earth receives the same amount of heat. अर्थ पे हर जगह पर सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं आती, सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी नहीं आती. वाई? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड वाई इट डज नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्यों नहीं रिसीव करता सेम अमाउंट ऑफ हीट? बिकॉज ऑफ द नेचुरल टिल्ट, इन द अर्थ्स एक्सिस. अर्थ की एक्सिस में जो टिल्ट होता है, that causes the sun rays to not reach all the places on earth equally. This natural tilt in the earth's axis. ठीक है. And here the amount of, write it down, the amount of heat which is received by different parts of earth, it is not the same. ठीक है. तो जो अमाउंट ऑफ सन एनर्जी वी रिसीव, दैट इज नॉट द सेम. दैट इज वाई इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड, अगेन द एरियाज नियर द इक्वेटर, द स्टेट्स नियर द इक्वेटर, दे आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ ISA. इंडिया की तरफ से वो एरियाज हमारी कंट्री में जो कि इक्वेटर के आसपास हैं, वो सिटीज, वो स्टेट्स जो इक्वेटर के आसपास हैं, सिर्फ वही स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे ISA में. ठीक है. टू हार्नेस द सोलर एनर्जी, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज नियर द ट्रॉपिकल रीजन, स्पेशली नियर द इक्वेटर रीजन. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. पोलर रीजन्स में तो हो नहीं सकता, एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ में तो हो नहीं सकता. इट इज नियर द ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है. नाउ व्हाई दिस वेरिएशन? अब ये जो वेरिएशन होता है आपका, ठीक है, दिस वेरिएशन, इट ऑल्सो कॉजेज, राइट इट डाउन, इट ऑल्सो कॉजेज द प्रेशर डिफरेंसेस. येस और नो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आता है ना इस वेरिएशन की वजह से.
इट कॉजेज द प्रेशर डिफरेंसेस इन दी एटमॉस्फेयर। आप हायर लेवल पे जाओगे प्रेशर चेंज होगा, आप लोअर लेवल पर जाओगे प्रेशर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सन की जो रेडिएशन आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो चेंज्ड है, वो डिफरेंट है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इनटू हाई प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, इसी की वजह से आप देखते हो हमारी कंट्री में हाई प्रेशर सिस्टम होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है। एंड दिस डिफरेंस, दिस प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, इट लीड्स टू, राइट इट डाउन, it leads to transfer of heat from one region to another region to the other region by the way of winds। ठीक है, तभी आप देखते हो कि ओशनिक रीजन में आसपास रात के समय ठंडा हो जाता है एरिया और दिन के समय वार्म होने लगता है एरिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। ठीक है, दैट इज वाई देयर इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन डेजर्ट रीजन एट नाइट एंड एट डे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक सबको। सो दिस इज द बेसिक्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ सोलर रेडिएशन। अब बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स साइमल्टेनियसली। उम्मीद करती हूँ आप लोग नोट्स बना रहे हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो सोलर रेडिएशन क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज इंसोलेशन। इसी को हम इंसोलेशन भी बोलते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली सोलर रेडिएशन, अगर आपसे पूछा जाए लेमैन की टर्म में बताओ सोलर रेडिएशन क्या है, इफ आई आस्क यू इन कॉमन पार्लेंस, इन कॉमन डेफिनेशन, व्हाट इज सोलर रेडिएशन अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से सोलर रेडिएशन क्या है? इन इजी लैंग्वेज हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? है इन वेरी इजी लैंग्वेज, सोलर रेडिएशन इज द रेडिएंट एनर्जी, बिकॉज रेडिएशन वर्ड है ना, इट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच इज एमिटेड बाय द सन एंड रिसीव्ड बाय द अर्थ। समझ आ रही है बात? ये हो गया आपका सन। ठीक है, दिस इज द अर्थ। सो एनर्जी विच इज रेडिएटेड, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन विच इज एमिटेड बाय द सन एंड रिसीव्ड बाय द अर्थ। जो अर्थ सन देता है और अर्थ रिसीव कर लेता है। प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लो। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। अब यहाँ पर आप रेज नहीं बोलोगे, वो बच्चों वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो छोटे बच्चे थोड़ी हो 6th क्लास के जो रेज बोल रहे हो। ठीक है, इट्स एन एनर्जी, सन रेज के थ्रू एनर्जी एमिट कर रहा है। ठीक है, सो वी विल टारगेट द वर्ड एनर्जी। इट्स अ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। ठीक है, और यू कैन से एमिटेड बाय द सन एंड रिसीव्ड बाय द अर्थ। दिस इज द कॉमन बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोलर रेडिएशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोलर रेडिएशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन क्लाइमेट ऑन अर्थ। ठीक है, जब हम सोलर रेडिएशन की बात करते हैं, यही रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है चेंजेस को लेकर। नाउ इन दिस एनर्जी वी स्टडी अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इस एनर्जी में हम बहुत 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं एंड दोज कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू 2 डेट्स। फर्स्ट इज नोन एज 4th जुलाई, पहला डेट है 4th जुलाई। सेकेंड इज नोन एज 3rd जनवरी। आई होप यू ऑल मस्ट हैव heard about them। 4th जुलाई आपका PYQs में पूछा गया है। In prelims 4th July term has been asked। ठीक है, we will go to that also, don't worry। Now first of all let us understand solar radiation related to the layers of earth। सबसे पहले solar radiation को पढ़ लेते हैं earth से related। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे this is earth, ये हो गया आपका earth। Then first we have the troposphere, पहला हमारे पास आ जाता है troposphere। ठीक है, देन वी हैव द स्ट्रैटोस्फेयर, उसके बाद आएगा आपका स्ट्रैटोस्फेयर। देन स्ट्रैटोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, फटाफट से बताएं। विच लेयर कम्स आफ्टर स्ट्रैटोस्फेयर? यस, वी हैव द मीजोस्फेयर। अब हमारे पास मीजोस्फेयर आएगा। ठीक है, मीजोस्फेयर आप इधर देखोगे 50 to 80 किलोमीटर। देन वी हैव थर्मोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर आती है हमारे पास एंड थर्मोस्फेयर इज 80 to 700 किलोमीटर। एंड देन लास्ट लेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। ये हो गई आपकी लास्ट लेयर, एक्सोस्फेयर। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, जस्ट हैव अ लुक एट इट, वेरी केयरफुल लुक एट इट एंड लेट मी नो विच विल बी द फर्स्ट लेयर टू रिसीव द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी रिसीव करने वाली कौन सी पहली लेयर होगी, जल्दी से बताएं। विच विल बी द फर्स्ट लेयर टू रिसीव द सोलर एनर्जी? यस, इट विल बी एक्सोस्फेयर। वेरी गुड। तो यहाँ पर हो गया आपका सन, सोलर एनर्जी रिसीव करने वाली पहली लेयर होगी एक्सोस्फेयर, लोअर इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है,
So when we talk about the solar energy coming from the sun to the exosphere, we know that this sun energy or solar energy, ठीक है, it first hits the outer layer of atmosphere which is the exosphere, and all the radiation that reaches the outer layer of the atmosphere which is known as the exosphere, ठीक है, same amount is not received by troposphere. Agreed? जो जितनी एनर्जी एग्जॉस्फेयर रिसीव करता है सेम ट्रोपोस्फेयर तक नहीं जाती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कम्स डाउन एज वी गो डाउन इनटू द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ट्रोपोस्फेयर तक, अमाउंट ऑफ सन एनर्जी ऑल्सो कम्स डाउन. फिल्टर होती है ना, वाई इट हैपन्स, बिकॉज इट इज गेटिंग फिल्टर्ड अप, क्योंकि ये फिल्टर हो रही है एनर्जी, ठीक है, फिल्टर हो रही है या आप बोल सकते हो अब्जॉर्ब हो रही है. इट इज गेटिंग फिल्टर्ड एंड अब्जॉर्ब्ड. तो ये नीचे नीचे जाते जाते डिक्रीज हो जाती है. सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑल दीज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दे एक्चुअली फिल्टर्स दी सोलर एनर्जी, फिल्टर करती हैं सोलर एनर्जी को, ठीक है, सन रेज को, एंड ऑल्सो इट सेंड्स बैक सम ऑफ दी सोलर एनर्जी इनटू द आउटर स्पेस. ठीक है, तो कुछ एनर्जी हम यहाँ पर एब्जॉर्ब करके नीचे भेजते हैं, कुछ हम वापस रिफ्लेक्ट करते हैं ऊपर, ठीक है, वापस से भेजते हैं. हेंस द टेम्परेचर सिस्टम इज बैलेंस्ड. हम कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं. वी टेक समथिंग, वी गिव बैक समथिंग, सो द टेम्परेचर सिस्टम इज बैलेंस्ड. इसी वजह से जो टेम्परेचर सिस्टम है वो आपका एब्सोल्युटली बैलेंस हो जाता है. ठीक है, तो बैलेंस इन टेम्परेचर सिस्टम समझ आ गया. आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, that we have two very important dates. First is known as 4th of July, second is known as 3rd of Jan. ठीक है, ये दो बहुत ही important dates हैं जो मैंने आपको बताया था. So what are these dates? Let us understand them first. सबसे पहले 4th of July, this period is also known as the period of aphelion. ठीक है, and 3rd of Jan, this day is also known as, this period is also known as perihelion. ठीक है, aphelion and perihelion. ठीक है, now what happens during aphelion and perihelion, we will understand that. First let us create a diagram. एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, and the diagram is of Earth's elliptical orbit. Over here we have the Earth, over here we have the Sun. तो यहाँ पर अपना अर्थ भाई आ गया, यहाँ पर अपना सन भाई आ गया. ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे ये जो ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल है. ठीक है, यू कैन सी दिस इज द ऑर्बिट and this is elliptical in nature. ठीक है, just I'll erase it and create it in a more specific manner. यहाँ पर आप देखोगे this is the orbit, इसको हम orbit बोलेंगे. ये elliptical orbit है अर्थ का. ठीक है, this is the elliptical orbit of earth. ठीक है, and over here you will see that हमारा जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नेचर में नहीं है. इट इज़ नॉट इन सर्कुलर फॉर्म, इट इज़ एलिप्टिकल इन नेचर. ठीक है, इन फॉर्म, एंड दिस इज द फिक्स पाथ. ठीक है, आप देखोगे ये आपका इक्वल डिस्टेंस है. अब यहाँ आप देखोगे व्हेन वी लुक एट दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट, व्हेन द अर्थ ट्रैवल्स वन ट्रिप अराउंड द सन, यानी कि अर्थ जो है वो एक पूरा ट्रिप ले रहा है सन के आसपास. दिस इज द अर्थ, इट इज टेकिंग वन कंप्लीट ट्रिप अराउंड द सन. It does not return to the same point. If it is over here, after one trip it can be over here, then after another trip it can be over here. ठीक है, अब होता क्या है, जब अर्थ एक ट्रिप लेता है ना, उसके बाद ये सेम पोजीशन में आकर नहीं रुकता. अनदर ट्रिप इट विल बी ओवर हेयर, फिर यहाँ से ट्रिप लेगा और आकर यहाँ रुक जाएगा. सो इट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट इज़ नेवर एट द सेम पॉइंट. मतलब ये एक वापस सेम पॉइंट पे, सेम पोजीशन पे नहीं आता. इट चेंजेस द पोजीशन आफ्टर टेकिंग वन ट्रिप. ठीक है, सो देयर इज अ डेविएशन इन द ऑर्बिट. इस ऑर्बिट में आप डेविएशन देखोगे, दिस इज द डेविएशन इन द ऑर्बिट. व्हाट इज डेविएशन? चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाई दिस डेविएशन हैपेंस. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द अदर प्लैनेट्स. जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ग्रेविटेशनल पुल्स अर्थ पे एक्सरसाइज करते हैं. दे ऑल्सो ट्रैवल अराउंड द सन, सो दे एक्सरसाइज देयर ग्रेविटेशनल पुल, बिकॉज ऑफ विच अर्थ नेवर कम्स बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट. जहाँ से शुरू किया वहाँ नहीं आ पाता. ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपने पॉइंट से भटक जाता है. ठीक है, दैट इज वाई यू सी द लीप ईयर ऑल्सो. इसी वजह से ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं. सभी को समझ आ रही है बात? सो दिस अर्थ्स एलिप्टिकल मूवमेंट, ये जो अर्थ की एलिप्टिकल मूवमेंट है, ठीक है, दिस एलिप्टिकल मूवमेंट स्पीड इज मिनिमम व्हेन इट इज फार फ्रॉम सन. यानी कि सन से जितना दूर होगा इसकी एलिप्टिकल स्पीड जो होगी,
ठीक है, जो स्पीड होगी वो उतनी कम होती जाएगी, घटती जाएगी. एज फार एज इट गोज फ्रॉम द सन इट्स एलिप्टिकल स्पीड विल मिनिमाइज, कम होती जाएगी. इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कम बैक टू इट्स पोजीशन. ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया. अगर ये समझ आ गया तो 4th जुलाई और 3rd जैन समझ आ जाएगा. इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट देन एपीहिलियन एंड पेरिहिलियन विल बी इजी. ठीक है, सो नाउ ओवर हियर लेट्स स्टार्ट विद एपहिलियन. सबसे पहले एपहिलियन की बात करते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एपहिलियन ओवर हियर, राइट इट डाउन दैट ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कॉन्सेप्ट राइट नाउ. सबसे पहले हम एपहिलियन की बात करेंगे, फिर हम पेरिहिलियन पर आएंगे. सो ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ अराउंड द सन. The earth is, you have to remember the distance, आपको distance याद रखना है. The earth is farthest, it is farthest from the sun. farthest मतलब कितना किलोमीटर दूर होता है? somewhere around 152.6 million kilometer away. ठीक है, 152.6 million kilometers away from the sun. ठीक है, and on 4th July this position is known as एपहिलियन. 4th जुलाई को इस पोजीशन को हम बोलते हैं एपहिलियन. देन कम्स पेरिहिलियन. अब बात करते हैं पेरिहिलियन की. ठीक है, सो दिस हैपन्स ऑन 3rd of Jan. ये पोजीशन जो है 3rd Jan को आती है, वेयर द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन. अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, दैट मीन्स 147.5 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है. आपको पॉइंट याद रखना है, एग्जैक्ट 152.6 एंड 147.5. ठीक है, एग्जैक्ट यू हैव टू रिमेंबर. सो इन पेरिहिलियन वी हैव द अर्थ नियरेस्ट टू द सन, बट इन एपहिलियन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन. ठीक है, सो इन द पेरिहिलियन, यहाँ पर आप देखोगे ऑन 3rd of Jan पेरिहिलियन द एनुअल इंसोलेशन, बिकॉज वी आर नियरेस्ट टू द सन, तो एनुअल इंसोलेशन कम होगी या ज्यादा होगी? इंसोलेशन इज सोलर रेडिएशन, इट विल बी लेस और इट विल बी मोर? यस, इट विल बी स्लाइटली मोर. इंसोलेशन मतलब जो सन की एनर्जी है, ठीक है, इट विल बी स्लाइटली मोर बिकॉज वी आर नियरेस्ट टू द सन. हम सन के करीब है ना, इसलिए इंसोलेशन जो होगी वो ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, स्लाइटली. ठीक है, यहाँ तक ये दो कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गए. ठीक है, द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. चलो अब बढ़ते हैं आगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन. ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है अमाउंट एंड इन द इंटेंसिटी, इट वेरीज. अब आप डे की बात करो या सीजन की बात करो या फिर आप एक ईयर में ही देख लो, इन ऑल दीज एरियाज, इन ऑल दीज फेजेस द सोलर रेडिएशन वेरीज, yes or no? Amount and intensity of solar radiation will vary or it will remain the same. क्या डिफरेंट होगा सोलर एनर्जी या फिर सेम रहेगी? सोलर रेडिएशन अलग रहेगी ना, दिन में अलग होती है, रात में अलग होती है. ड्यूरिंग द डे टाइम इट्स डिफरेंट, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इट इज डिफरेंट, ड्यूरिंग विंटर सीजन इट इज डिफरेंट, राइट? सो अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इट वेरीज, चेंज होता है. ठीक है, इट वेरीज. नाउ व्हाट आर द कॉजेज फॉर दैट? उसके कॉजेज क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है. वेरीज का मतलब चेंज होता है. ठीक है, अब इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, ये समझ लेते हैं. व्हाट आर द कॉजेज और व्हाट आर द कारण? सो द फर्स्ट कॉज इज नोन एज, राइट इट डाउन, द रोटेशन ऑफ अर्थ, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, तो पहला कारण है कि अपने खुद के एक्सिस पे रोटेशन जो अर्थ का होता है वो पहला कॉज है, पहला कारण है कि क्यों सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी डिफरेंट होती है. सो वील क्रिएट अ डायग्राम फॉर दैट. उसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं. इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा. सो यू नो ओवर हियर वी हैव द नाइट. यहाँ पर आप नाइट देख लो, यहाँ पर आ गया डे, एंड दीज आर द सन रेज विच आर कमिंग टू अर्थ. ये सन रेज हैं जो अर्थ में आ रही हैं. ठीक है, दिस इज द रोटेशन ऑफ अर्थ. ये अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे. ड्यूरिंग द नाइट टाइम द टेम्परेचर इज कूल, ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज वार्म. ठीक है, दिन में थोड़ी गर्मी होती है और नाइट में थोड़ी ठंडी होती है. सो ओवर हियर यू विल राइट दैट इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 23 hours and 56 minutes for the earth to rotate
So it takes 23 hours and 56 minutes for the earth to rotate on its own axis. ठीक है, on its ओन एक्सेस, अपने एक्सेस पे रोटेट करने में टोटल टाइम कितना लेता है 23 hours 56 minutes. नाउ सम पीपल दे ट्राई टू राउंड इट ऑफ एंड दे से 24 hours, बट एग्जैक्ट अगर नंबर ऑफ आवर्स देखें तो इट इज 23 hours and 56 minutes, मतलब 24 घंटे में 4 मिनट कम, इतना टाइम लेता है अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट करने में. बिकॉज ऑफ विच वी गेट टेम्परेचर वेरिएशन, जिसके वजह से हम टेम्परेचर वेरिएशन देखते हैं. एंड टेम्परेचर वेरिएशन शोज द डिफरेंस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ. रोटेशन की वजह से कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है. ठीक है, इसलिए टाइम डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है. अमेरिका, यूएस और इंडिया के बीच में देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. तो यहाँ पर अब आगे अगर हम बढ़ेंगे, द सेकेंड रीजन इफ वी स्टडी, द सेकेंड रीजन इज द एंगल ऑफ, राइट इट डाउन, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सन रेज, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सन रेज. सो हियर वी हैव द अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ, एंड हियर वी हैव द सन, ये हो गया आपका सन. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सन रेज नाउ. अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सन रेज ड्रॉ करने वाले हैं. These are the direct sun rays coming to earth. ये आपकी डायरेक्ट सन रेज हो गई नियर द इक्वेटर, ये हो गई सन रेज नियर द इक्वेटर. ठीक है, एंड ओवर हियर दिस इज द पोलर रीजन, ये आपका पोलर रीजन हो गया. तो यहाँ पर भी सन रेज आएंगी, सन रेज दो इन लो इंटेंसिटी बट दे आर ऑल्सो रीचिंग द पोलर रीजन, पोलर रीजन में भी आ रही हैं सन रेज. सो दिस इज द सन रेज इन द पोलर रीजन. ठीक है, तो ये दोनों ही आपकी सन रेज हैं. दीज आर दी sun rays that are coming. okay, एक ये वाली और एक ये वाली. this is known as angle of incidence, इसी को हम बोलते हैं angle of inclination और angle of incidence. ठीक है, या आप बोलोगे इसको incidence. ठीक है, समझ आ रही है बात यहाँ तक. and this is known as the latitudinal variation, write it down, latitudinal variation of sun rays. इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड के हिसाब से अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूडनल वेरिएशंस के वजह से सन रेज में भी वेरिएशन देखने को मिलता है. सो हियर यू विल राइट दैट दी सन रेज दे आर डायरेक्ट एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे जो सन रेज हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट होती हैं. ठीक है, एंड इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल रीजन ऑफ अर्थ. इक्वेटर को ही हम अर्थ का सेंट्रल रीजन बोलते हैं. ठीक है, एंड सेंट्रल रीजन रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज फ्रॉम द सन. ओके, बट एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, देन सन रेज आर एट लोअर एंगल्स. यहाँ पर जो सन रेज हैं वो लोअर एंगल्स पे पाई जा रही हैं. एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है इक्वेटर वाली कंट्रीज का और पोलर रीजन्स में जो कंट्रीज है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के वजह से है. समझ आ रही है बात यहाँ तक सभी को. सेकेंड रीजन इज क्लियर और नॉट, प्लीज लेट मी नो. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड रीजन, दैट इज द लेंथ ऑफ डे. अब थर्ड रीजन जो है वो है आपका लेंथ ऑफ डे. ठीक है, नाउ वी नो दैट लेंथ ऑफ वन डे ऑन अर्थ इट इज डिटरमाइंड बाय हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द अर्थ टू रोटेट वंस. कितना टाइम अर्थ लेता है एक बार रोटेट करने में, उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि एक दिन कितना लंबा होगा पृथ्वी पर. क्लियर हो रही है बात. तो आप लिख भी सकते हो इसको, दैट द लेंथ ऑफ वन डे ऑन अर्थ इट इज डिटरमाइंड बाय हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द अर्थ टू रोटेट वंस. एक बार ही रोटेट करने में कितना टाइम लिया जाता है अर्थ के द्वारा, उससे हम पता करते हैं कि आपके एक दिन कितना लंबा होगा. ठीक है, सो हियर अगेन वी आर गोइंग टू मेक अ डायग्राम. एक और बार एक डायग्राम बना ही लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, दिस इज अर्थ, यहाँ पर हो गया नाइट एंड दिस इज डे. सो सी आई हैव टोल्ड यू दैट अर्थ टेक्स 23 hours 56 minutes टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक ट्रिप कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट्स लगते हैं. बट दी रिसर्चर्स दे हैव एक्सटेंडेड इट और दे हैव राउंडेड इट ऑफ टू 24 hours. उन्होंने अपने सहूलियत के लिए इसको 24 घंटे में राउंड ऑफ कर दिया है. सो दैट इज वाई दे डिवाइड नाइट बाय 12 hours एंड डे बाय 12 hours. यानी कि दिन आपका 12 घंटे का,
नाइट आपका 12 घंटे का, टोटल 24 आवर्स. बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट द केस. रियलिटी में इट इज़ नॉट द केस दैट नाइट इज़ 12 आवर लॉन्ग एंड डेज 12 आवर लॉन्ग, बिकॉज कभी कभी दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, कभी कभी रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, विच हैपन्स इन समर एंड विंटर्स. ठीक है, जो कि समर और विंटर में होता है. बट फॉर आर यू कैन से फॉर आर कंफर्ट, हमें अपनी चीज़ों को ईज करने के लिए, अपने रिसर्च को ईज करने के लिए वी हैव डिवाइडेड. ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है. बट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ सीजन डिफरेंस इट हैपन्स. अब यहाँ पर क्या होता है, सन रेज के ऊपर भी और सोलर रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रात कितनी लंबी होगी या दिन कितना लंबा होगा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो समटाइम्स डे इज लॉन्गर एंड वाइस वर्सा. Now coming on to the fourth reason. Fourth reason is the transparency. It is the transparency of atmosphere. ठीक है, अब हम ये जो reasons पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं ज़रा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. Let's see how many of you are focused in the class and how many of you have lost the focus. Why are we studying these reasons? किस चीज़ के reason है जो हम पढ़ रहे हैं? Danish is saying UPSC is asking. UPSC is not asking right now. I am asking किस चीज़ का reason पढ़ रहे हैं हम. We are studying the reason behind the variation in intensity and amount of solar radiation. So over here, next reason is transparency of atmosphere. ठीक है, now transparency of atmosphere का मतलब क्या होता है? What do you mean by transparency? Transparency means we can see the other side very clearly. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि आप आर पार देख सकते हो क्लियरली. ठीक है, बट हेयर इन दिस केस ट्रांसपेरेंसी मीन्स, यहाँ पर इस केस में ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, दैट हाउ मच ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लीन इनफ टू बी विजिबल. ठीक है, एटमॉस्फेयर कितना धुंधला है या कितना साफ है कि हम प्रॉपरली उस सन रेज को या आप कह सकते हो सोलर एनर्जी को व्यू कर सकें, देख सकें. ठीक है, नाउ एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रॉपरली विजिबल ड्यूरिंग सम इवेंट्स, सम सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन. ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ फ्लाइट टू टेक ऑफ. अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो एक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती हैं, कहीं काफ़ी सारी नियर बाय कंट्रीज की फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं करती. वाई? बिकॉज देर आर एशेज, वॉल्केनिक एशेज इन द एटमॉस्फेयर विच मेक्स इट ओपेक. ठीक है, जिससे एटमॉस्फेयर जो होता है वो ओपेक हो जाता है. इट मेक्स द एटमॉस्फेयर ट्रांसल्यूसेंट. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हेन द एटमॉस्फेयर बिकम्स ट्रांसल्यूसेंट, द सोलर रेडिएशन विच इज कमिंग टू अर्थ, जो सोलर रेडिएशन अर्थ में आ रही है, इट गेट्स ब्लॉक्ड, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाती हैं. ठीक है, एंड दी एक्स्ट्रा रेडिएटिंग हीट ऑफ लैंडमार्क्स गो आउट. अब यहाँ पर तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो हीट बाहर जा रही है और बाहर की रेज ब्लॉक हो गई हैं, तो बीच में ही ओपेकनेस क्रिएट हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग राइट नाउ. जिस वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, द वॉर्स, द फॉरेस्ट फायर्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एटमॉस्फेयर ओपेक, जिसके वजह से हमारा क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है इस वक्त, because of which our climate is getting affected, deeply impacted. Point clear हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक है, so this is the fourth reason. Now coming on to the fifth reason, and this reason is the configuration of land in terms of its aspect. So now configuration of land in terms of its aspect. बात आपको समझनी है यहाँ पर. देखो यहाँ सन है, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ. ठीक है, सन रेज, दिस इज द एटमॉस्फेरिक लेवल, ये आपका एटमॉस्फेयर है. सन रेज आर कमिंग इन. ठीक है, एंड अर्थ की यहाँ से रेडिएशन बाहर जा रही है. ठीक है, नाउ जब अर्थ की रेडिएशन बाहर जाती है ना, यहाँ पर एटमॉस्फेयर उसको ब्लॉक कर लेता है. एटमॉस्फेयर ब्लॉक सम ऑफ द रेडिएशन ऑफ द अर्थ. अब समझो कि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हैज टेकन प्लेस. ठीक है, बिकॉज ऑफ द एशेज विच हैव स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर, जो एशेज स्प्रेड हो गई एटमॉस्फेयर में, दे हैव मेड द एटमॉस्फेयर ओपेक. तो सन की जो रेज आ रही हैं वो यहाँ आके ट्रैप हो गई हैं, और यहाँ से जो रेडिएशन जा रही है वो भी यहीं ट्रैप्ड है. तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा या नहीं? The sun rays are becoming trapped because of opaqueness of the atmosphere, and the earth radiation which is going out, it is also getting trapped.
सो व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर विल इंक्रीज, यहाँ पर इतनी हाई लेवल ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, अ वेरी हाई लेवल ऑफ हीट विल जनरेट ओवर हियर, सो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। क्या हो रहा है अभी, यही तो हो रहा है। दैट इज वाई वी से स्टबल बर्निंग इज रॉन्ग, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया स्टबल बर्निंग मत करो, ये खराब है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्यों ऐड करना, वाई यू आर एडिंग अप टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज कन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। लैंड इज रिलेटेड टू टोपोग्राफी। व्हाट इज टोपोग्राफी, अब ये टोपोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ द लैंड मास ऑफ द कॉन्टिनेंट। जब जितने भी जमीन है हमारी कॉन्टिनेंट में, ठीक है, धरती है, उसकी स्टडी को टोपोग्राफी बोलते हैं। सो ऑल द लैंड मासेस, दैट मीन्स द हिमालयन रीजन, द माउंटेनियस रीजन, द फॉरेस्ट रीजन वेयर वी हैव लैंड, ठीक है। So all the land masses of the continent are studied in the topography, and we know that land masses they heat up very fast as compared to the oceanic region. हमें पता है जो land masses होती है, ज़मीन है, वो जल्दी heat up होती है, yes or no? It heats up faster as compared to the oceanic region than the ocean bodies. Everybody will agree to this, सब agree करोगे, ठीक है। So this is the land mass, ठीक है, ये आपका लैंड मास हो गया, एंड दिस इज द ओशन, ठीक है। यहां पर आप देखोगे इट इज ओपेक एंड इट इज ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अब यहां आप देखोगे दीज आर द सन रेज विच आर कमिंग, ये सन रेज आ रही है यहाँ पर, एंड ओवर हियर ऑल्सो द सन रेज आर कमिंग। यहाँ पर जो सन रेज है, यहाँ पर हम ओपेक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज व्हेन द हीट विल गो अप इट विल गेट ट्रैप्ड ओवर हियर। यहाँ पर जो हीट जाएगी वो ट्रैप हो जाएगी, ठीक है, इट विल गेट ट्रैप्ड। यहाँ पर बारिश इतनी इजीली नहीं होती, बट इन द ओशनिक रीजन द रेनफॉल, इफ द हीट इज गोइंग अप, अगर हीट ऊपर जा रही है तो वो वापस भी बरसेगी बारिश के रूप में, ठीक है, इट विल गेट डिजॉल्व बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। सो हियर द एरिया इज ट्रांसलूसेंट, हियर द एरिया इज कंप्लीटली ओपेक बिकॉज ब्लॉकेज ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन दिस एरिया वेरी इजीली, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सो हियर you will know that the land mass gets heats up faster, so in turn it increases the earth's temperature। जब ये जमीन है ये गर्म हो जाती है तो ये अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ा देती है, it increases the earth's temperature, ठीक है। so this heated land mass radiates heat, and we have studied that one of the roles of atmosphere is to block the heat from going out into the space. So when the heat is blocked over here, it increases the overall temperature of the earth. इससे क्या होता है, गर्मी में आप देखोगे जो आपके डेजर्ट रीजन है वहाँ दिन के समय मुश्किल होता है गुजारना। इन द डेजर्ट रीजन्स ड्यूरिंग हॉट समर सीजन्स इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। एंड एग्जाम्पल इज लू ऑल्सो, यस, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। We are wrapping up this session. In next class we will understand the summer equinox, the summer solstice, and we are going to study the autumnal equinox and winter solstice, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं।